So, hello everybody, welcome you all. Today I am live in my Facebook page. At the same time, I will be available there with my YouTube channel, Amit E Universe, at the same time, uploading the same thing. So, what we have gathered here for today, or what we are going to discuss today, is a very interesting topic in English. At the same time, it works in developing your communication or enhancing it. See, basically, when we talk of English, we need to understand that grammar is very important when you are learning English. Now, in grammar, what do you need to learn? Basically, the past speech is something which you need to learn as a beginner. And then after, the next label, we need to learn about subject, verb, agreement and tenses. Today, we are going to deal or discuss about tenses. Now, as I already mentioned it to you in some of my previous videos, that I'm someone who hates to use PPTs and again whiteboards and carrying any stuff in my classroom, maybe for assisting me while teaching. This is something which I don't like. So I'd request everybody who is watching it at the moment to take a pen and a copy and note down the important points. See, when you are learning टेंस पढ़ते समय ना दो तीन चीजें दिमाग में आती है. मेरे दिमाग में सबसे पहले जब मैंने टेंस पढ़ा था तो ये बात आई थी कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं. टेंस को हिंदी में कहते हैं काल. और जिस तरीके से लोग टेंस पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ये सचमुच का काल बना हुआ है. राइट नाउ व्हाट इज टेंस? बिफोर दैट I'll come to one important point, that what do you mean by a sentence? And I have given it a beautiful definition on my own, that anything which makes sense with the tense is called sentence. Anything which makes a sense with the tense is called sentence. Now, जब हम टेंस पढ़ रहे होते हैं, जब हम काल पढ़ रहे होते हैं, तो तीन इंपॉर्टेंट काल हम लोगों को पढ़ना होता है. ऑब्वियसली तीन ही होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट है भी एट द सेम टाइम. अच्छा, ये तीन टेंस कौन कौन से हैं? पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस. नाउ व्हेन वी आर लर्निंग टेंस, वी गो एंड फिगर आउट कि ये तीन तरीके के टेंस होते हैं और इन तीन तरीके के टेंसेस में चार तरीके के फर्दर सब डिविजन्स होते हैं और ये जो सब डिविजन्स होते हैं ये पांच तरीके के सेंटेंस में फर्दर एलाबोरेट होते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं या चेंज होते हैं. इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम लोग. आज बहुत इजी तरीके से टेंस को समझने की कोशिश करेंगे और टेंस को दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे. ठीक है? Be playful when you are studying under my guidance. और थोड़ा सा मजाक मस्ती करते हुए पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है. मैं क्लास में भी हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ that I need two important things in my classroom. One, a big smile on your face, and second is the adequate amount of discipline. So be disciplined. At the same time, don't get tensed when you are learning tense. Take it easy, smile and let's start. अब स्टार्ट करते हुए टेंस को मैंने बोला सबसे पहले हमें पढ़ना होता है प्रेजेंट टेंस. When we are studying present tense, we need to know that present tense has four types or four kinds: present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Present simple is also called present indefinite. Present continuous speaks about anything which is happening at the moment when we are speaking about it. Present perfect, definitely I'll be explaining about everything one by one. Now present indefinite, the first thing which comes in mind, present simple, present indefinite. The word indefinite means anything which we are not sure about, which we are not very definite about,
which we are not very known about. Now, what do we speak of when we talk of present simple tense or present indefinite tense? We talk of something which happens as a routine action, as an action which we do in our day-to-day life, an action which is habitual in nature, and something which is of course the universal truth. अब टेंस जब आप पढ़ रहे हैं तो दो चीजों पर खास ध्यान रखना है आपको. पहला, द एप्लीकेशन वेयर दिस पर्टिकुलर टेंस एंड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वुड बी अप्लाइड, or what will be the meaning of the sentence when it is coming to a particular category of a tense, right? अब हम present simple की बात कर रहे हैं तो present simple is a tense which speaks about anything which is habitual, at the same time which speaks of the universal truth. अब मैं बोल रहा हूँ राम आम खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वो आता है, हम मिलते हैं. So all these are habitual actions, all these are often actions, all these are actions which we do as a general routine. At the same time, sun rises in the east is the universal truth. Now let me coordinate it properly. Indefinite, अनिश्चित. मैंने बोला present simple speaks about an action which is indefinite in nature and which happens as we talk of the present. Now, I'm calling it indefinite. I teach English. Yes, of course, this is a general fact. This is a routine action which I do. This is my habit. But at the same time, you cannot surely tell about the time of the action. You cannot say that this is the time when Amit sir teaches English. We are not very sure about the time of the action, but we are sure about the fact that it is a general fact or it is something which happens as a habit. Sun rises in the east, but we cannot surely say, looking at the sentence or hearing to the sentence, that it is speaking about something in a particular point of time. So when we are not very sure about the time of the action, we call it an indefinite tense, but we know that it happens, and when it happens, it is said to be प्रेजेंट. तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब ये होता है. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हम बोलते हैं दैट व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे होते हैं उस समय वो एक्शन हो रहा होता है. यू आर लिसनिंग टू मी, आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडिंग. सो at this particular point of time, this action is on, this action is going on, and that is why it is called present continuous. When we talk of present perfect again, now present perfect speaks of an action which completes at the time of speaking. Mind my words, ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझेंगे. which completes at the time of speaking and has an impact in the present. मान लीजिए अभी मैं अच्छे से रूम में बैठा हुआ हूँ, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, मैं अचानक बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ पेड़ों के पत्ते गीले हैं, उस पे पानी की बूंदें गिर रही हैं, जमीन गीला है, मैदान गीला है. तो मैं क्या बोलता हूँ बाहर निकल के? आई इमीडिएटली से दैट लगता है बारिश हुई है. मैं ये नहीं कहता बारिश हुई थी. सो मैं जब कह रहा हूँ कि बारिश हुई है, आई मीन टू से it has rained. The impact of the action is visible. Now if I'll be giving another example to you, मान लो मुझे भूख लगी है, and if I say that I need something to eat, and if one of my students says that sir I have bought my lunch, and the other says sir I brought my lunch, sir I have brought my lunch, and sir I brought my lunch. Now when I say sir I have brought my lunch, or when somebody says that I brought my lunch, both the sentences are different. I brought my lunch means it is the past simple. मैं lunch लाया था, मैं बहुत भुक्कड़ हूँ सर, मैं सारी की सारी रोटियां खा गया, सारी की सारी सब्जियां खा गया, and there is nothing left with me. लेकिन जब
मुझे कोई स्टूडेंट कहता है सर आई हैव ब्रॉट माई लंच, इसका मतलब यह है गुरुजी 4 रोटी लाया हूं, 2 रोटी आप खाइए, 2 रोटी हम खाएंगे, दोनों मिलके प्रभु के गुण गाएंगे. दैट मीन्स the lunch box is not empty at that particular point of time. It has an impact in the present. So it is present perfect tense. Now present perfect continuous. अभी continuous के बारे में हमने बात की और perfect के बारे में बात की. Perfect says action हो चुका है, impact है. Continuous says action चल रहा है. When we talk of present perfect continuous tense, we talk of an action which is happening at the time speaking. At the same time, some part of the action is completed. अब मान लो मैं एक 4 माले की बिल्डिंग में आपको ले जाऊं और मैं बोलूं दिस इज द बिल्डिंग और इसमें 2 माले का काम हो चुका है, 2 माले का काम चल रहा है. यू कैन सी लेबरर्स वर्किंग देयर. सो आई कैन से कि सर्टेन पार्ट ऑफ द एक्शन यानी 2 माला जो है वो बन चुका है, 2 माला अभी भी बन रहा है, एंड इट इज गोइंग टू टेक अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम टू कंप्लीट, विच इज नॉट वेरी श्योर एट द सेम टाइम. तो थोड़ी सी इंडेफिनिटी, कंटिन्यूटी और परफेक्शन तीनों दिखती है इस टेंस में. तो द बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टिंग फॉर लास्ट 2 years. 2 साल से ये बन रहा है, 2 साल में आधा बना है, आधा अभी भी काम चल रहा है. So this is the application part. टेंस को समझने से पहले सबसे पहले उसके एप्लीकेशन को समझना जरूरी है. हम मिस्टेक यही करते हैं. टेंस इसीलिए हमें टेंशन देता है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर्स याद करने की कोशिश करते हैं, हम सिंटेक्सेस याद करने की कोशिश करते हैं, और जो इजी डिविडेंड्स है जिस पर हम आराम से खेल सकते हैं और टेंस को आराम से समझ सकते हैं, उसी को हम छोड़ देते हैं. ये बेवकूफ़ी हमारे लिए महंगी पड़ सकती है. बिकॉज you need to understand this, that most of the people communicating today miss out on only one thing, and they are pathetically bad at this, that is tenses. If they work on their tenses, they can be perfect, more fluent and more effective speakers. तो अभी मैंने चारों की यूजेज आपको समझाई, चारों का एप्लीकेशन समझाया कि इस तरीके का जब सिचुएशन होगा या इस तरीके की बात जब हम बोल रहे होंगे तो प्रेजेंट का सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं. स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको 2 काम करना है मेरे लिए. This is something which is very very important, and if you seriously need to learn English and if you really want to improve your vocabulary, at the same time you want to work on your tenses, you need to do this particular activity first. This is your assignment before you approach for tenses. पहला काम क्या करना है, आपको वर्ब का कलेक्शंस बनाना है. वर्ब का कलेक्शन कैसे बनाएंगे, उनके कंजुगेशंस के साथ बनाएंगे. मतलब V1, V2, V3, V4 एंड V5 ये 5 फॉर्म्स लिखेंगे और कोई शॉर्टकट्स नहीं लगाएगा कि +s और es इन V5 और +ing इन V4. राइट इट फुल. पूरी एक प्रॉपर कॉपी बनाइए, उसमें V1 to V5 वर्ब्स के पूरे फॉर्म्स और मोर देन 250 वर्ब्स आपको बनाने हैं, आउट ऑफ विच 100 आर द वर्ब्स विच यू ऑलरेडी नो एंड 150 शुड बी द वर्ब्स विच यू आर नॉट अवेयर अबाउट और द वर्ड्स विच यू नीड टू लर्न द मीनिंग ऑफ. तो आपने 150 वर्ब्स ऐसे बनाने हैं और 100 वर्ब्स ऐसे बनाने हैं जिनका मीनिंग आपको ऑलरेडी मालूम है. नाउ व्हेन यू कलेक्ट दीज वर्ब्स, पहला स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक पर्सन का बॉक्स बनाना है, चार्ट बनाना है. ठीक है, जिसमें नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. लेट मी डिटेल इट टू यू इन ब्रीफ दैट फर्स्ट पर्सन इज आई, second person I and we, second person is you, and third person is he, she, it, names and so on. Now if we talk of cases, nominative case, possessive case and objective case, there are 3 cases. अब ये 3 केस क्या होते हैं. Nominative speaks about anything which comes at the starting of the sentence. I'm briefing it एकदम इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि सेंटेंस की शुरुआत में जो भी वर्ड्स आप लगाते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप लगाते हैं, दैट कम्स अंडर नॉमिनेटिव केस. पॉजिटिव, जो भी किसी चीज के होने का
which expresses the thought of owing something or having something is called possessive case. Mera, tera, hamara, tumhara, hum sabka. This is possessive case. And objective, understand it in a easy language. Object comes at the end of the sentence, so objective cases will come at the end of the sentence. Like when I say I love you, I is the nominative case coming at the starting of the sentence, you is coming at the end, and that becomes the objective case. I love you, you are my best friend. My speaks of mera, possessive case, so my will be the possessive case. तो ये दो चीजें आप बना करके अपनी कॉपी में रखें पहले, टेंस को अप्रोच करने से पहले. अब मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के यूज के बारे में बताया. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका सिंटेक्स कैसे काम करता है. हाउ डज द सिंटेक्स ऑफ द टेंस वर्क्स. नाउ एज आई सेड दैट सेंटेंस is something which makes a sense with the tense, and syntax is something which taxes the tense. Now remember this कि कोई भी काम करते हैं ना, उसके लिए पैसा लगता है. उसके लिए you need to give an input. That input may be in any form, cash or kind. तो आप समझ ले कि ये कैश और काइंड है. जब आप अप्रोच कर रहे हैं टेंस को, तो दिस इज द कैश एंड काइंड. इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इसको इतना ज्यादा हाइपर भी ना बना ले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंस थोड़ी सी फीकी पड़ जाए. यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट एट कैलकुलेटिंग कि टेंस पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए. अब जैसे प्रेजेंट सिंपल की हम बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल सेज दैट यू नीड टू हैव अ सब्जेक्ट and then a verb and a object. What kind of a verb? Which form of a verb? Conjugate करेंगे V1 to V5. तो कौन सा form of verb लगेगा? V1 लगेगा या V5 लगेगा? V1 कहाँ लगेगा? V1 हमेशा I, we, you और they के साथ लगेगा. और V5 कहाँ लगेगा? he, she, it और they के साथ. they के साथ लगेगा क्या? लगेगा? Anybody who is watching it live, can anybody answer me this? Will it be used with they? V5? They eat or they ate? It will carry a V1. It will only carry V1. He, she, it will carry the V5. Now, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया उसके हिसाब से एक सेंटेंस लेते हैं. द इजिएस्ट सेंटेंस विच यू फाइंड इन एवरी ग्रामर बुक. राम ईट्स मैंगोस. राम ईट्स मैंगोस. दिस इज द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. अब इसको हम लोगों को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है. किन किन फॉर्म्स में? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चंस. इन 5 फॉर्म्स में हमें इसको कन्वर्ट करना है, लेकिन इसको कन्वर्ट सिर्फ मैनुअली करके या कॉपी में करके नहीं छोड़ना है. वी नीड टू ब्रिंग अ फ्लुएंसी ड्रिल एज अ प्रैक्टिस अलोंग विद दिस. हाउ कम विल बी ब्रिंगिंग द फ्लुएंसी ड्रिल इनटू इट? जैसे मैंने बोला राम ईट्स मैंगोज. अब इसका नेगेटिव बनाएंगे. राम डज नॉट ईट मैंगो. इंट्रोगेटिव बनाएंगे. डज राम ईट मैंगोज. इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे. डज राम नॉट ईट मैंगोज. नेगेटिव क्वेश्चंस बनाएंगे. डजंट राम ईट मैंगोज. नाउ ये सेंटेंस आपने बना लिया अपनी कॉपी में. अब इसके साथ साथ मैंने बोला आपको वर्ब का कलेक्शन करना है. अब ये सिंपल सेंटेंसेस नहीं चलेंगे. अब इन सिंपल सेंटेंसेस को हटाइए और कुछ स्मार्ट सेंटेंसेस रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू जियोग्राफी, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू द थिंग्स गोइंग अराउंड अस, उन पर कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए यूजिंग द वर्ड्स विच यू डोंट नो और विच यू आर नॉट अवेयर अबाउट. राइट नाउ अगर करंट सिचुएशन से एक एग्जाम्पल ले तो हम बोल सकते हैं COVID-19 attacks the people who are major in age. या अगर हम सिंपल कहें, सिंपल शब्दों में कहें तो COVID-19 attacks और COVID-19 affects the senior citizens easily.
तो जब हम ये बात बोल रहे हैं, वी आर यूजिंग द वर्ड अटैक्स, ईट, कम, गो, sleep. These are the general words. I am not taking a complicated word at the same time. I am just giving you an example. But you can take the complicated word which you need to add to your vocabulary. Now when you make this sentence, like when you say Ram eats mangoes, Ram does not eat mango. Does Ram eat mango? Does Ram not eat mango? Doesn't Ram eat mango? Amit sir teaches English. Amit sir does not teach English. Does Amit sir teach English? Does Amit sir not teach English? Doesn't Amit sir teach English? We love you. We do not love you. Do we love you? Do we not love you? Don't we love you? Now when you speak 20, 30, 40 sentences as such, imagine the kind of fluency you'll be generating in your English. At the same time, जब आप उस नए वर्ड को जो आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं उसको 5 बार रिपीट करेंगे, 6 बार रिपीट करेंगे, 7 बार रिपीट करेंगे, that word will automatically be added to your vocabulary. As I already said in my previous lecture कि मैं जो भी नई वर्ड सुनता हूँ उसको मैं अपने सारे क्लासेस में जाकर के एक बार यूज करता हूँ. And what happens? It automatically takes some space in my brain and it becomes a part of my permanent vocabulary list. Now, अब प्रेजेंट के बारे में बात हो गई, पास्ट के बारे में भी हम फटाफट उसी तरीके से बात करेंगे. अब पास्ट सिंपल के बारे में बात करते हैं. पास्ट सिंपल को भी पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं. पास्ट में कोई एक्शन हुआ है, श्योर है, पक्का है, लेकिन किस समय हुआ ये पक्का नहीं है, इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट है. वी आर नॉट डेफिनिट अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन. टेंस के बारे में जब भी बात करते हैं टाइम का इंपॉर्टेंस है, और टाइम के बारे में अगर हम डेफिनिट नहीं है तो वो इंडेफिनिट टेंस ही बनाएगा. राइट? सो व्हेन वी से आई वेंट टू द मार्केट, so it is sure that I went to the market, but at what time I'm not sure about it. I went to the market, I did not go to the market. Did I go to the market? Did I not go to the market? Didn't I go to the market? Now मैं मार्केट गया था, मैं मार्केट नहीं गया था, क्या मैं मार्केट गया था, क्या मैं मार्केट नहीं गया था, क्या मैं मार्केट नहीं गया था. So these 5 kinds of sentences are framed when we transform it. Affirmative, negative, interrogative, interrogative and negative questions. Now इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सिंक करके प्रैक्टिस करेंगे, फ्लुएंसी ड्रिल्स बनाएंगे, फ्लैश कार्ड्स अपने लिए तैयार करेंगे और हर दिन का एक प्रैक्टिस सेशन इस पे चलेगा. ठीक है? सिंटैक्स आपको इजीली अवेलेबल है किसी भी ग्रामर के बुक में. अगर मैं सिंटैक्स आपको बता रहा हूं तो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सिंटैक्स जानना चाहते हैं तो मैं फटाफट आप लोगों को प्रेजेंट का और पास्ट तक, अभी पास्ट सिंपल तक हम आए तब तक का सिंटैक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. V4 ing goes with every sentence. Present perfect, subject plus has or have plus this object. Right? I've done it. Now present perfect continuous, subject plus has or have plus this V4 plus been plus object. Sorry, subject plus has have plus been plus V4 plus object. This is present perfect continuous. Past simple says subject plus V3 plus object. Right? I went, go, went, gone. Sorry, V2 plus object. Now past continuous. अभी मैंने प्रेजेंट के बारे में बोला कि अगर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एन एक्शन इज हैपनिंग वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट में क्या होता है, ये जो एक्शन होता है पास्ट के रेफरल कंटिन्यूटी में हम देखते हैं. हाउ इट इज अ रेफरल कंटिन्यूटी, हाउ डज इट गो विद द रेफरल कंटिन्यूटी. मैं जैसे मैं बोलता हूं कि अच्छा 1947 की बात कर रहे हैं, उस समय तो मैं भेड़ चराया करता था. Right? So when we take a reference of an action which
happened in the past and which we and when we talk of a continual action happening in the past, then we use the past continuous tense. उस समय वो continuous चल रहा था. So the continual action taken into reference in the past is past continuous. Past perfect मतलब action past में complete हुआ है. मैंने क्या कहा, जब हम indefinite की बात करते हैं action नहीं हुआ रहता है या उसका टाइम हमें कंफर्म नहीं होता है. एक्शन तो डेफिनेटली होता है बट उसका टाइम हमें कंफर्म नहीं होता है. एट व्हाट टाइम द एक्शन हैज बीन डन वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. बट परफेक्ट का मतलब ही हो गया वी परफेक्टली नो द टाइम ऑफ द एक्शन. सो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जब भी हम बात कर रहे होते हैं वी टॉक ऑफ एन एक्शन विच इज डेफिनेटली कंप्लीट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. पास्ट में बात कर रहे होते हैं, इसकी श्योरिटी कैसे आएगी? हाउ विल वी बी श्योर अबाउट द एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट और विच हैपेंड इन द पास्ट? तो हमें एक रेफरल एक्शन फिर से लेना पड़ेगा या हम एक कह सकते हैं कि प्रीसीडिंग एक्शन मस्ट बी टेकन व्हेन वी स्पीक ऑफ परफेक्ट वर्क टू बी डन इन द पास्ट. जैसे मैं बोलूं कि मैं आपके घर गया था लेकिन आप मार्केट जा चुके थे, तो क्या हुआ? मैं आपके घर पहुंचा, लेकिन क्या मैं पहले आपके घर पहुंचा या आप पहले मार्केट गए? आप पहले मार्केट जा चुके थे, फिर मैं आपके घर पहुंचा. तो मैं कहूंगा when I went to your home you had gone to the market. You had gone to the market. आप क्या कह रहे हैं कि जब मैं आपके घर पहुंचा आप मार्केट जा चुके थे. तो जब मार्केट आप जा चुके हैं ये एक्शन परफेक्टली हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर श्योर अबाउट इट. दैट इज व्हाई वी गिव अ प्रीसीडिंग एक्शन टू कंफर्म दैट द एक्शन इज परफेक्टली डन. अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, द सेम पिक्चर कम्स. सम पार्ट ऑफ द एक्शन इज डन at the time when it is referred to be in the past and some other part of the action is continuous, right? So हम कहते हैं कि मैं 5 साल पहले यहाँ आया था और मैंने देखा था कि ये बिल्डिंग 3 माले तक बन चुकी थी और बाकी 2 माले का काम चल रहा था, right? When Britishers came to India, they exploited it. And when we talk of an action which was happening at that particular point of time, that is something which is a past action, but sometimes it comes with the perfect notions. जब हम किसी एक्ट के बारे में बात करते हैं या किसी मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो perfectly at a certain point of time it was being done, right? At the same time हम कई बार ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जब वो हो रहा था वहां पर तो उसका पास्ट से भी कोऑर्डिनेशन था और साथ ही साथ वो रेफरिंग फ्यूचर की तरफ भी बढ़ रहा था, राइट? सो इट कोऑर्डिनेट्स द पास्ट एंड रेफरिंग फ्यूचर एट द सेम टाइम, इसलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं. कोई भी एक जनरल सेंटेंस अगर हम लेते हैं तो हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट इज हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज हैड बिन, राइट? India had been struggling for independence since a particular point of time. You can give a particular point of time depending on your reference of text. तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि यूजेज पर ज्यादा फोकस करना है, एप्लीकेशन पर ज्यादा फोकस करना है. सिंटेक्स आपकी जबान पर खुद चढ़ जाएगा. आपको सिर्फ दिमाग में एक चीज रखनी है कि इज, एम, आर, was, where, has, have, been, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि आपके टेंस में यूज होंगे. जब is, am और are के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली स्पीक्स अबाउट द प्रेजेंट. जब हम was, were, had के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली इट विल स्पीक अबाउट पास्ट. एंड will और shall के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली इट विल बी स्पीकिंग अबाउट फ्यूचर. अब इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर हम फ्यूचर तक पहुंच गए हैं. फ्यूचर बड़ा इंटरेस्टिंग है. टेंस का फ्यूचर जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग आपका फ्यूचर होगा अगर आप टेंस को सही तरीके से समझ जाओगे. इसको अनलॉक करना बहुत जरूरी है. फ्यूचर टेंस में हम लोग कई गलतियां करते हैं. एवरीडे मिस्टेक इन एवरी सेंटेंस वी
speak or write, we make mistakes with future. Now future के बारे में एक पहली बात हम लोग समझते हैं, बड़ी easy और obvious बात है. Future is a fictitious tense. ये fiction है ना, ये probability पे based है, हुआ नहीं है. मैं बोल रहा हूँ अभी आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा कि कल मैं फिर से लाइव आ रहा हूँ, मेरे पास आप टॉपिक बताइए, मैं उस पर आपसे डील करूंगा. आई विल बी डिटेलिंग यू अबाउट इट. तो ऑब्वियसली मैंने किया है, प्रोजेक्ट किया है या प्लान किया है. आप भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, कल मुझे सुनना है या नहीं सुनना है. सो इट इज अ प्लान्ड और अ प्रोजेक्टेड एक्शन, बट इट हैजंट हैपेंड येट. So we are not very sure about it, or we cannot be very confirm about it. Maybe कल मेरे पेट में दर्द हो जाए, मेरे सर में दर्द हो जाए, मुझे गुस्सा आ जाए किसी बात पे, घर पे मैं किसी से लड़ झगड़ लूँ, मैं बोला आज क्लास नहीं लूँगा. So future is anything which we project, which we plan, which we are not sure about, which is very unsure. So future is a fictitious tense. लेकिन फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज ज्यादा होता है. इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट ज्यादातर सेंटेंसेस आप देखेंगे फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज हो रहा है. बट फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस कम्स विद द सेम मीनिंग, सेम आइडिया. एंड फ्यूचर परफेक्ट and future perfect continuous are almost eradicated from our conversation and are logically rarely used into books and context as such. अब future simple और future continuous क्या बोलता है? I am giving you two sentences. आप खुद से जज करें. I will teach you about tenses tomorrow. I will be teaching you about tenses tomorrow. I will take you for a date tomorrow. I will be taking you for a date tomorrow. Not on a serious note. Anyways, getting back. When I say I will take your class tomorrow, I'll be taking your class tomorrow, I mean to say the same thing. मैं वही कह रहा हूं कि मैं कल क्लास लूंगा, मैं कल क्लास लूंगा. So will be लग जाए या I will बोले, दोनों ही सेंटेंसेस का सेंस सेम है. इट स्पीक्स अबाउट अ प्लान्ड और अ प्रोजेक्टेड एक्शन इन फ्यूचर. इट स्पीक्स अबाउट अ प्लान्ड और अ प्रोजेक्टेड एक्शन इन फ्यूचर एंड इट मे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर बट कम्स विद द सेम मीनिंग. आने वाले समय में ये काम मैं करूंगा, उसके लिए फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों ही मैं लगा सकता हूं विद द सेम मीनिंग. नाउ going back and revising the things which we studied today. I said when you begin with your tenses and lesson of tenses, the first thing which you need to do is you need to have the conjugation of verbs done. 150 verbs, the meaning of which is not known to you or the meaning of which was not aware to you. And 100, the meanings of which are clearly known to you. Right? Now change them into V1, V2, V3, V4, V5. Do the listing. Number 2, create a chart for the persons. क्या क्या person है? First person, second person, third person. 3 cases होती हैं, nominative, possessive, objective. List them into that. ये देखो, पहले आपने हीरो को इंट्रोड्यूस किया फिल्म में. हीरो कौन है? वर्ब. और वर्ब के 5 फॉर्म्स, यानी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और जो खान और कुमार है. 5 हीरो हो गए. अब हीरोइन की बारी है. अब 5 हीरो हैं, मल्टी स्टारर फिल्म है तो हीरोइनें भी ज़्यादा होंगी. तो हीरोइनें आप ले आएंगे. कहाँ से लाएंगे? जब आप चार्ट बनाएंगे पर्सन्स का. जब आई और वी को लिखेंगे, यू को लिखेंगे, ही, शी, इट और दे को लिखेंगे. सिंगुलर उसको डिवाइड करेंगे, प्लूरल में उसको डिवाइड करेंगे. फिर उसके बाद उस चार्ट में पॉजिटिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा और नॉमिनेटिव. जैसे आई का पॉजिटिव होगा मी और माइन, ऑब्जेक्टिव होगा मी. राइट? जैसे यू पॉजिटिव nominative will be you, possessive will be your or yours,
and objective will be again you. He, possessive will be his and objective will be him. तो ऐसे आप चार्ट बना लेंगे. Part 2. Part 3 is to develop a sense of understanding and creating a fluency drill for every sentence you frame. जैसे आप प्रेजेंट सिंपल का टेंस बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल यू नीड टू नो दैट इट इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट द एक्शन व्हिच हैपेंस एज अ habitual action, which is a general fact or which is a universal truth. तो आपको पहले से मालूम है कि जनरल फैक्ट के बारे में बात करें, हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करें, तो प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब एक्शन चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट, काम कंप्लीट हो गया, उसका इंपैक्ट है, दिख रहा है कि काम कंप्लीट हुआ है. हैव यू रिटन, क्लास में पूछते हैं टीचर्स, हैव यू रिटन, यू रिप्लाई यस सर आई हैव रिटन. दैट मीन्स वहां पर टीचर को दिख रहा है आपने पेन से लिखा, अभी फुल स्टॉप लगाया और पेन को रखा. सो impact in the present is there. Present perfect continuous, impact is there, some part of the action is done, some other part of the action is continuous. तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गया कि इन सिचुएशंस में इन टेंसेस का यूज होता है. अब इसके बाद टेंस का सिंटेक्स पे आते हैं. सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट के साथ V4 लगता है. और जनरली हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ V4 ही लगे. अच्छा, एक चीज अनलॉक करना जरूरी है, ये आप लोग दिमाग में रखेंगे. इज समथिंग ट्रांसफॉर्मेशन के समय आपको ध्यान रखना है. जो मैंने डिड यूज किया, आई एट अ मैंगो, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, तो यहाँ डिड आ गया. और जब मैं प्रेजेंट में बात कर रहा था, देन अगेन आई यूज डज, और फिर मैंने V5 को V1 में चेंज कर दिया. ठीक है, ये क्यों हुआ? डू का हम लोग एक कंजुगेशन करते हैं. डू, डिड, डन, डूइंग, डस. V1 डू, V2 डिड, V3 डन, V4 डूइंग, V5 डस. डू का अपना फॉर्म है. ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब हम प्रेजेंट सिंपल की या पास्ट सिंपल की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इन द अफर्मेटिव सेंटेंस. तो हमें नेगेटिव में चेंज करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है. तो हेल्पिंग वर्ब हम ले आए डज. तो डज क्या हो गया? V5 हो गया. तो जब V5 हम ऑलरेडी ले आए, तो जो पहले से V5 था उसको फिर से सीधा सुधा कर दें हम लोग, फिर उसको फिर से V1 में चेंज कर दें, परफेक्ट हो जाएगा. फिर यही पास्ट सिंपल में हम करते हैं. जब डिड लगाते हैं तो डिड V2 है, तो जब V2 आ गया तो फिर पहले वाला V2 को सीधा सुधा कर देते हैं. So this is something which you need to keep in mind as a rule. ये रूल आपको ध्यान में रखना है. अच्छा, point number 3 is done. Point number 4 is to bring it out into fluency drills. We are watching a video. We are not watching a video. Are we watching a video? Are we not watching a video? Aren't we watching a video? He met me yesterday. He did not meet me yesterday. Did he meet me yesterday? Did he not meet me yesterday? Didn't he meet me yesterday? So when you speak sentences, it will brush up your tongue. At the same time, it will give you fluency and confidence to speak in English. कोई rocket science नहीं है इंग्लिश बोलना. सिर्फ और सिर्फ अभी तो बेस्ट टाइम है. The best time of your life when you are locked down, when you are self-quarantined, when you are in a situation where nobody else is bothered about what you are doing. Everybody will say कि बहुत कामगर है मेरा बेटा मेरा बेटी. ठीक है, तो अभी कोई टेंशन तो है ही नहीं, घर पे बैठना है, पढ़ाई करनी है मस्ती से. और बेस्ट थिंग टू डू इज दिस, बैठ जाओ मिरर के सामने और शुरू करो फ्लुएंसी ड्रिल. Right? So stay optimistic. Before I'll end the session, कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है. Again about the lockdown and the impact of COVID-19. See, life has changed drastically for many, for us, for the people around. But
few things which changed will definitely haunt us in future. The thing which changed is the value of money. आज हम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. We'll have to understand the value of money, right? अब कोई ज़रूरी नहीं है अरमानी, कोई ज़रूरी नहीं है गुची. It won't work for you, right? There are not going to be any marriage parties and public gatherings. Well, you'll require the executive suits. So don't spend money on things which are not necessary at all. Especially for the average middle class family, spend it on food, spend it on important aspects, but don't waste the money on useless things. Don't buy a car, don't buy a new mobile phone. And let me tell you, I have cracked the screen of my mobile phone, but I have not thought of changing it. I am using the Febiquick and using it for a while unless I'll be very sure about my income in the future, right? And again, start something of your own. Be an entrepreneur. Today there is no jobs in hospitality industry, travel industry. Now people are not going to look into travel bloggers on YouTube. They are going to look into people who can provide them some employment or who can be of some need for them or some use for them. So be a need for the person and be some use for somebody, right? Express yourself online because the world may change and definitely it may take a completely new shape altogether. So we need to be proactive and ready for the challenges which are coming, and definitely we are going to win over this particular situation, but poor is becoming poorer, richer will remain rich. So there is no affirmative acceleration in any case, right? तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा समझदार होना पड़ेगा और अपने लिए नए नए रास्ते खोजने पड़ेंगे. You'll have to be creative, you'll have to be innovative. All the good luck, lots of love to everybody of you. Great interacting with everybody of you every time. Thank you who showed the patience watching me on Facebook Live, and at the same time I'll be posting this video in my YouTube channel Amit E Universe, and I'd love that if you share it to more and more people, and I'd reach out to the maximum student one at a same time, and that will be a great deal of help for them. At the same time it will be a help for me. So all the best, love to all, and take care. Bye bye.